हेलो एवरीवन। तो आप सभी का मेरे चैनल तीव्रा पर स्वागत है। और आज मैं लेने वाला हूँ लेक्चर नंबर 3 फॉर हाइड्रोजन। तो इन लास्ट टू लेक्चर्स वी हैव कवर्ड। इन फर्स्ट लेक्चर आई टोल्ड यू व्हाई द हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन बिटवीन पीरियोडिक टेबल, नॉट इन एनी ग्रुप. इन सेकेंड लेक्चर आई टोल्ड यू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन इज देयर एंड ऑर्थो, पैरा, एक्टिव हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन. वी टॉक्ड अबाउट दिस, हाउ टू प्रोड्यूस एक्टिव हाइड्रोजन एंड व्हाट आर देयर यूजेस. तो देखिए, whatever I'm teaching you, my suggestion is please make notes. whatever I'm teaching you, आप उसके नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो अपने आप में एक टॉपिक आपको कंप्लीट मिलेगा. और जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो यू कैन टेक अ टेस्ट ओवर दिस टॉपिक एंड आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन पार्ट ऑफ दिस वीडियो. राइट, यू कैन स्टिल टेक. आई हैव जस्ट एडेड दिस फीचर. तो ये बिल्कुल टोटली न्यू फीचर है वेयर आफ्टर स्टडिंग ईच टॉपिक यू कैन टेक अ टेस्ट. राइट, तो इसमें आप लिंक में डिस्क्रिप्शन पार्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको टेस्ट मिलेगा एंड यू कैन टेक टेस्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ. तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ methods of preparation of hydrogen, and not just methods of preparation, I will also tell you about the chemical properties of hydrogen, some physical and chemical properties. Right, so let's start today's class without wasting much of your time. So methods of preparation of hydrogen. So how hydrogen is produced? Basically we will talk about 2 points. Hydrogen is produced in industries as well as hydrogen is also produced in laboratories. So to produce hydrogen in laboratory we have different methods. To produce hydrogen in industries we have different methods. Right, so let's start now. Point number 1. So when we are saying method of preparation of hydrogen, first of all by action of water with the metals. Second point, Lane process. So these are the methods which I will discuss today. How action of water with metal produces hydrogen. What is Lane process? By reaction of metal like zinc, tin, aluminum with the alkalis, by action of metal with the acids. So I'm going to discuss all these points with you, right? Then we have by electrolysis of water. So don't worry, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस तरीके से आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कोई भी आप में से डिसअपॉइंट ना हो, नीदर इंग्लिश स्टूडेंट नॉर हिंदी स्टूडेंट. सो by electrolysis of water. So there are 4 methods up to this point. Then we have fifth method, sixth method by preparation of pure hydrogen. So how to prepare pure hydrogen, I will discuss this as well. And then industrial preparation, right? So let's start by action of water with the metals. So when I'm talking about the active metals, so these are the metals which are placed above hydrogen in activity series. तो देखिए आपने एक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, जिसमें यहाँ पर मैं अगर हाइड्रोजन को ले लेता हूँ तो हाइड्रोजन के नीचे कौन से एलिमेंट होते हैं नॉर्मली? Ag, Cu, Pt एंड Au. दीज आर इनर्ट मेटल्स. हाइड्रोजन के ऊपर कौन से मेटल होते हैं? Na, K, Ba, कैल्शियम, iron, Pb, nickel, chromium. So we call them active metals. We call them active metals. We call them inactive metals. राइट, तो हाइड्रोजन मैंने इनके बीच में रख दी. हाइड्रोजन के ऊपर एक्टिव मेटल और नीचे जो होते हैं वो रिलेटिवली लेस एक्टिव मेटल होते हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन. तो अगर मैं एक्टिव मेटल लेता हूँ लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड दे रिएक्ट एट द रूम टेम्परेचर. सो हेयर आई कैन राइट, here I can write 2Na plus 2H2O. So if I add sodium into the water, I will get 2NaOH plus pure hydrogen gas. So hydrogen gas will be produced. Not just hydrogen, I can also take Mg plus 2H2O. So it will give you MgO plus H2 gas. Are you getting my point? तो यहाँ से आपको एक्टिव मेटल से आपको हाइड्रोजन मिलेगी. यू विल गेट हाइड्रोजन. Similarly, if you are writing this K plus 2H2O, it will give you KOH plus H2 gas, right? So, any doubt you have till this point? कोई डाउट नहीं है. पहला पॉइंट तो यही हो गया, हाउ टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन. सो विद एक्टिव मेटल्स like NaK, they react at the room temperature to produce hydrogen. Less active metals, if I take calcium, so this is the series NaK, Ba, these are at the top. Then we have less active metals like this Fe, Pb, Ni. I will also show you that series, don't worry. But with less active metals, it liberate hydrogen only on heating. यहाँ पर मैं रूम टेम्परेचर पर ही प्रोड्यूस कर सकता था, बट
क्योंकि ये थोड़े से कम एक्टिव हैं तो यहाँ मुझे थोड़ी सी हीट भी देनी पड़ेगी, और कुछ नहीं है, प्रोडक्ट आपके सेम होंगे। तो अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2Fe plus 3H2O, it will give you Fe3O4 plus H2 gas. So in the next page you will find this reaction 3Fe, right? What is Lane process? What is, just a minute. So in calcium, what will you do? You will get CaO plus H2 gas. You can balance it later, but you have to slightly heat it. So here we have to heat it. यहाँ रूम टेम्परेचर पर ही काम होता था, क्योंकि ये मेटल एक्टिव मेटल है, ये आपके रिलेटिवली लेस एक्टिव मेटल है, तो यहाँ पर आपको इन्हें क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? नो डाउट। लेन प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या है? लेन प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस स्टीम इज पास्ड ओवर हॉट आयरन. Iron decomposes steam with the formation of magnetic oxide Fe3O4 and hydrogen. In this process, steam is passed over red hot iron, and iron decomposes steam with the formation of Fe3O4 and hydrogen. So I will show you this. Just look at it. Here we are taking pure iron Fe, and what we are doing? We are passing steam. Why I am calling it steam? मैं steam क्यों बोल रहा हूँ? Because temperature is very high. So this will be in form of gas. So when this steam is passed over here, finally you will get pure hydrogen. और ये जो नीचे आयरन पड़ा हुआ था, ये आयरन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व, यू विल गेट Fe3O4. इट इज मिक्स्ड ऑक्साइड. व्हाट इज Fe3O4? इट इज मिक्स्ड ऑक्साइड. हम इसे मिक्स्ड क्यों कहते हैं? Fe.Fe2O3. इट इज मिक्सचर और रेशियो ऑफ टू ऑक्साइड्स. वन इज फेरिक ऑक्साइड, another is ferrous oxide. Note this down. This is very important point. Then we have iron is generated by reducing magnetic oxide with water gas. So what is water gas? Now I will tell you. It is a mixture of CO and H2. So iron is generated by reducing magnetic oxide with water gas. This reaction is called vivification. You can also obtain iron. देखिए आयरन को भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसको हमें 20 मिनट लगते हैं, जबकि जो पिछली रिएक्शन थी उसके लिए हमें 10 मिनट का टाइम चाहिए. दिस रिएक्शन इज टर्म्ड एज गैसिंग रिएक्शन, एंड द टाइम अलॉटेड फॉर दिस इज 10 मिनट. तो यहाँ पर क्या हुआ है, आपको आयरन से क्या मिला है? Fe3O4. यू हैव कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड ऑक्साइड. बट यहाँ क्या हुआ है, यहाँ ध्यान से देखिए. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विविफिकेशन. तो यहाँ पर आपने Fe3O4 को किस में कन्वर्ट कर लिया है? आयरन में. Fe3O4 को किस में कन्वर्ट कर लिया है? आयरन में. सो दिस इज कॉल्ड विविफैक्शन. गॉट इट? The reaction of metal like zinc, aluminum, and so these are relatively less stable. So zinc with NaOH will form sodium zincate. So this will be ZnO2 2 minus. We call it zincate, sodium zincate. Similarly, with aluminum, it will form sodium aluminate. These are very very important reactions. Note them. इन्हें कम से कम 2 या 3 बार लिखें. अगर आप इन्हें नहीं लिख रहे हैं, note them down 2 to 3 times. Next, we have aluminum. In presence of water, it will give you sodium aluminate, and hydrogen is being evolved. Just look at every step. Here I am taking silicon, NaOH plus H2, and again you are getting sodium silicate. So along with sodium silicate, you will also get 2H2 gas. Any doubt you have till this point? So this is one more method. Then by action of metal. So this is the series I was talking about. This is called activity series. So you have to remember this series in the same sequence. Here we are having hydrogen. These are the metals. So as we are moving downward, the activity is decreasing. So lithium, potassium, this is most active, then activity is decreasing, right? So these are, normally we call them active metals up to magnesium. These are less active. These are active. Then we have hydrogen, and below hydrogen we will be having copper, Ag, Au, Pt, these metals. Not in the same sequence, but we call these metals as inert metals.
सो जस्ट नोट डाउन दिस सीरीज, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके बहुत काम आने वाली है, आप इस सीरीज को अच्छे से नोट कर ले। LiK, cesium, BaMg, एल्यूमिनियम, इन दिस सीक्वेंस ओनली। तो जो एक्टिव मेटल है ये आपके नॉर्मल टेम्परेचर पे भी हाइड्रोजन दे रहे थे, यहाँ इनके लिए आपको नॉर्मली हीट करना पड़ेगा। तो बाय एक्शन ऑफ मेटल विद द एसिड, द एक्टिव मेटल which lie above hydrogen in the electrochemical series can displace hydrogen gas from dilute mineral acid. So active metal, if I am taking active metals, what are active metals? Which lie above hydrogen in the series. So they can displace hydrogen gas from dilute mineral acid. Just look at it. If I take Fe, so Fe is above hydrogen. Here we have Fe. Along with HCl, I am taking dilute HCl. Remember this point, हमें dilute HCl लेना है, and it is giving you H2. तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये हाइड्रोजन की जगह जाके खुद लग रहा है, और हाइड्रोजन को इससे हम कहते हैं कि हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस। आपने 9th-10th में पढ़ा होगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ मैंने लिखा है Fe+2HCl, तो ये क्या दे रहा है, FeCl2 plus H2 गैस, राइट। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट वी हैव जिंक, जस्ट लुक एट इट। तो जिंक भी कहाँ पर है, इट इज ऑल्सो अबव हाइड्रोजन, सो इट इज एक्टिव, सो इट विल डिस्प्लेस। लेकिन अगर यही चीज, ये ध्यान रखना आपको, ये डाइल्यूट लेने सारे, लेकिन अगर यही रिएक्शन मैं कॉपर के साथ कराऊं तो व्हाट विल हैपन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, Cu plus HCl, then there will be no reaction. The metal, because copper lies below this, Ag plus HCl, then there will be no. So हाइड्रोजन कब मिलेगी आपको, हाइड्रोजन जब मिलेगी जब कोई, इनको मिनरल एसिड कहते हैं, जो नॉर्मली आपको H+ दे देते हैं, जब मिनरल एसिड किसी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, इन दैट केस यू विल बी गेटिंग हाइड्रोजन, राइट। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, इट मस्ट बी नोटेड दैट प्योर जिंक इज नॉट यूज्ड। इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। तो ये मैं जो बता रहा था, प्योर जिंक नहीं लेनी आपको, जिंक का एक ब्रॉन्ज एलॉय वगैरह लेना होगा। कॉन्सेंट्रेटेड इज नॉट यूज्ड, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब नहीं तो जो SO2 बनेगी या जो हाइड्रोजन बनेगी वो उसी को ऑक्सीडाइज कर देगा, इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर एक तरीका है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सो व्हेन यू कैरी आउट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यू विल गेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस by passing the electrolysis. So how electrolysis is carried out? You are taking water here, then you will take 2 electrodes और फिर आप उसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दो, इलेक्ट्रोलिसिस विल बी कैरिड आउट। क्योंकि ये काफ़ी इसकी एक्टिविटी कम होती है, तो इसमें आप लोग Na2SO4 या हल्का सा कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दो ताकि वाटर की कंडक्टिविटी बढ़ जाए। तो यहाँ पर आपको कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलेगी और एनोड पे आपको कौन सी गैस मिलेगी, ऑक्सीजन गैस। कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, ऑलवेज रिडक्शन विल टेक प्लेस एट कैथोड। +1 से 0 पे जा रहा है, यहाँ पर -2 से 0 पे जा रहा है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। एट एनोड देयर विल बी ऑलवेज ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। बताइए भाई, तो यहाँ पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पर रिडक्शन होगा। कोई डाउट? चलिए भाई, by electrolysis of water it is obtained as byproduct in manufacturing of sodium hydroxide and chlorine by electrolysis of brine solution. So instead of water here it should be brine solution. Note it down. So brine क्या होता है? It is NaCl. So when you carry out electrolysis of NaCl, you will get NaOH, you will get chlorine, and you will get hydrogen gas. So this method is called chloralkali method. Chloralkali method, right? So when I will teach you the S block, then we will take up this. तो S ब्लॉक में मैं इसे लूँगा, प्रोडक्शन ऑफ सोडियम में आपका डिटेल में हम लोग लेंगे, हैलाइड की प्रिपरेशन में भी ये आएगा। क्लोर एल्कली, तो यहाँ क्लोरीन बन रहा है, एल्कली बन रहा है, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हो रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो जब आप NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट करेंगे तो ये प्रोडक्ट्स होंगे। चलिए, प्योर हाइड्रोजन अगर आपको चाहिए तो प्योर हाइड्रोजन कैसे मिलेगी? पॉइंट नंबर 1, इट कैन बी ऑब्टेन्ड, it can be obtained by action of pure dilute. So again it is active metal, on reaction with it, it will give you pure hydrogen. और
This problem was asked in JEE Main 2020. JEE Main September 2020. This problem was asked कि भाई अगर प्योर हाइड्रोजन आपको चाहिए, इफ यू नीड हाइड्रोजन ऑफ वेरी हाई प्योरिटी, then you can use these methods: action of H2SO4 on pure magnesium ribbon, or high purity dihydrogen is obtained by electrolyzing warm aqueous barium hydroxide. So when you are doing electrolysis of this, you will be getting pure hydrogen. बस ये लाइन एज इट इज लिखी हुई थी पेपर में. दिस लाइन वॉज मेंशन्ड एज इट इज. आई एम टेलिंग यू, दिस लाइन वॉज रिटन एज इट इज. तो ये ध्यान रखिए भाई, ये वाली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. तो हाई प्योरिटी डाई हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड. तो ये डायरेक्ट लाइन पूछी गई थी, अगर आपको पता है तो यू कैन आंसर इट. तो मैं आपको बता देता हूँ, आई एम टेलिंग यू, मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट एंड आफ्टर दिस ऑल्सो रिवाइज एनसीईआरटी. योर हाइड्रोजन विल बी कवर्ड. और फ्री के मार्क्स हैं, वेरी इजी स्कोरिंग टॉपिक, यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स. फिर बाय एक्शन ऑफ मेटल और मेटल हाइड्राइड्स विद द वाटर. देखिए मेटल हाइड्राइड NaH की रिएक्शन आप कराओगे वाटर से तो ये बनेगा. देखिए NaH के बारे में जरा मैं बात करूं तो इट विल गिव यू Na प्लस एंड H माइनस. तो H माइनस और वाटर को अगर आप रखोगे तो ये हमेशा आपको रिएक्शन के बाद OH और हाइड्रोजन गैस देगा, राइट. तो यहाँ पर Na प्लस भी लगा हुआ था तो OH के आगे NaOH आ गया और हाइड्रोजन गैस आ गया. तो मैंने आपको बोला था H माइनस इज अनस्टेबल एंड इट इज वेरी basic. So what will it will do? It will extract H plus or it will obtain H plus from the H2O. तो ये वाटर से एक H plus को छीन लेगा. तो वाटर ने H plus लूज किया तो ये वाटर एसिड की तरह बिहेव करेगा और ये बेस की तरह बिहेव करेगा, राइट. तो एसिड क्या होता है, जो प्रोटॉन देता है, और बेस क्या होता है, जो प्रोटॉन लेता है. तो जब ये H प्लस और H माइनस टकराएंगे तो हाइड्रोजन गैस बन जाएगी. गॉट इट. So second point, very pure form of dihydrogen is obtained. Just a minute. Very pure form of dihydrogen is obtained by action of QH on scrap aluminium. Very pure form of a dihydrogen is obtained by action of KOH on scrap aluminium. Very, very important, scrap aluminium, not pure aluminium. So when you are reacting aluminium with KOH, you will be getting KAlO2 plus 3 hydrogen. So just remember these methods. जैसे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले एल्यूमिनेट बना रहे थे, सिलिकेट बना रहे थे, जिंकेट बना रहे थे, तो वो यही है, पोटेशियम एल्यूमिनेट, राइट. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन. सो इंडस्ट्रीज में कैसे प्रिपेयर होता है. वन इज बोस प्रोसेस, सेकंड इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट 15 to 20% ऑफ एसिड और एल्कली. तो व्हाई वी ऐड दिस एसिड और एल्कली, क्योंकि जब मैं प्योर वाटर लूंगा तो कंडक्टिविटी ऑफ प्योर वाटर विल बी वेरी लो. तो उस कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा एसिड बेस या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं. तो वो खुद ना ऑक्सीडाइज होता है इलेक्ट्रोलाइट, ना वो खुद रिड्यूस होता है. जो हमने डाला बस वो क्या काम कर देता है, बोलिए. वो जो सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है. कंडक्टिविटी बढ़ने से क्या होता है, यहाँ आपने लेके वाटर लिया, ये एक इलेक्ट्रोड लिया, ये एक इलेक्ट्रोड लिया, और इस इलेक्ट्रोड को इससे कनेक्ट कर दिया. तो अब क्या होगा बताइए. तो अगर आपने इलेक्ट्रोड को इससे कनेक्ट किया तो आयंस इधर से उधर मूव करेंगे. जितनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी उतना ही आपका इलेक्ट्रोलिसिस फास्ट हो जाएगा, राइट. तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ बॉस प्रोसेस में क्या होता है. सबसे पहले वाटर गैस आप बनाते हो बाय पासिंग द स्टीम ओवर रेड हॉट कोक. तो कार्बन और स्टीम आप उसके ऊपर से पास करोगे तो यू विल गेट CO प्लस H2. दिस मिक्सचर इज कॉल्ड वाटर गैस. वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बार तो यही सवाल आ जाता है, व्हाट इज वाटर गैस. तो इट इज मिक्सचर ऑफ CO एंड H2. तो पहले आपने CO और H2 बने. तो ये मैं बोस प्रोसेस बता रहा हूँ कि इंडस्ट्री में हाउ डू वी प्रिपेयर हाइड्रोजन. रिडक्शन ऑफ स्टीम टू हाइड्रोजन बाय पासिंग इट ओवर Fe2O3 एंड Cr2O3 प्रमोटर. तो देखिए अब आपने क्या किया, जो स्टीम आपने ली, अब यहाँ से जो CO गैस बनी वो रिएक्ट करेगी. तो रिडक्शन ऑफ स्टीम टू हाइड्रोजन, और आपने उससे हाइड्रोजन बनाया. तो वाटर गैस ये H2O आएगा यहाँ पर. जस्ट ए मिनट, H2, ठीक है. तो अब यू नीड प्योर हाइड्रोजन और आपको क्या मिला है, CO प्लस H2, इन दोनों का मिक्सचर. बट हम बनाना क्या चाहते हैं, वी वांट प्योर हाइड्रोजन.
So we have to remove this CO. So when this water gas will react with this steam, so you will be getting CO2 plus 2H2. Now again you have to remove this CO2. तो देखिए वीडियोमेट्री में मैं आपको बताता हूँ कि CO2 को रिमूव करने के लिए आप कोई भी फेस ले सकते हो, NaOH ले सकते हो, KOH ले सकते हो, वो इनके साथ रिएक्ट कर जाएगी और K2CO3 बना लेगी, या फिर क्या बनाएगी, Na2CO3। तो CO रिमूव हो गई, CO2 रिमूव होगी, फिर भी कुछ अगर ये एक्सेस बची रह गई तो इसका क्या करोगे, तो हम अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड ले लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड डिसॉल्व दिस CO। तो देखिए दो दिक्कतें थी, एक तो CO बन रही थी, तो इसके लिए तो मैं क्या लेने वाला हूँ, CuCl। फिर यहाँ जो CO2 बन रही थी, इसके लिए मैं KOH या NaOH लूंगा। तो इधर देखिए अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड डिसॉल्व CO, पॉइंट नंबर 2। तो CO प्लस 2H2 प्लस CuCl2 विल गिव यू दिस। तो ये डिसॉल्व हो गई, तो अब आपको हाइड्रोजन मिल गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यह जहाँ भी ये रिएक्शन हो रही है, CO भी इसमें घुल गई, CO2 भी घोल दिया आपने, तो यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस मिलेगी। कौन सी गैस मिलने वाली है, हाइड्रोजन गैस, राइट। तो द CO2 इज रिमूव बाय एडिंग KOH। मैंने आपको बता ही दिया था KOH प्लस CO2 विल गिव यू K2CO3, right? So industrial preparation, the mixture of CO and H2 is called water gas. Remember this point. As this mixture of CO and H2 is used for synthesis of methanol and number of hydrocarbon, this is also called syngas. Very, very important point. CO plus H2 mixture is also called syngas. Why do we call it syngas? Because it is used in synthesis of methanol and a number of other hydrocarbons. Done. Nowadays syngas is produced from sewage. तो इसे गटर के पानी से भी हम तैयार कर लेते हैं, इवन क्योंकि ये पॉइजनस होती है। तो यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट, बहुत सारे स्वीपर या गटर की जो सफाई करते हैं वो लोग उस गैस की वजह से मर भी जाते हैं। तो ये गैस वहाँ प्रोड्यूस होती है, राइट। Nowadays syngas produced from the sewage, sawdust, scrap wood, newspaper, etc. The process of producing syngas from coal is called gasification. तो कोल गैसिफिकेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, सिन गैस क्या होता है, क्यों इसे बोलते हैं, वाटर गैस का ये एक और नाम है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिन गैस, कोल गैसिफिकेशन, तो हमने ये सारी चीज़ें की। इंडस्ट्रियल प्रोसेस, नाउ अगेन देयर इज वन मोर इंडस्ट्रियल प्रोसेस। यहाँ पर आप कोक ले रहे हैं कोक मतलब कार्बन, फिर वो H2O के साथ रिएक्शन करके क्या दे रहा है, CO plus H2, right? So when it is giving you CO plus H2, so this is water gas. The production of dihydrogen can be increased. तो यहाँ ये बनी और ये बनी, रिएक्टिंग द कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आपको ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव करनी पड़ेगी ऑफ सिन गैस मिक्सचर विद द स्टीम इन प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट। तो उसे हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, आयरन क्रोमेट के मिक्सचर को लूँगा इस टेम्परेचर पे, तो CO प्लस H2 रिएक्ट करके CO2 बनाएगी, CO2 को फिर रिमूव कर दूंगा, हाइड्रोजन बचेगी। This is called water gas shift reaction. The carbon dioxide is removed by scrubbing the sodium arsenic solution. तो ये वही प्रोसेस है, नॉर्मली मैंने आपको दोबारा बता दी। नेक्स्ट, बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में हम इसे कैसे ले सकते हैं, राइट। सो इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आई हैव ऑलरेडी टेकन दिस थिंग। तो यहाँ पर आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा सकते हैं कोई भी एक्टिव मेटल लेकर। So now the properties. So these were the methods of preparation of what, hydrogen gas. Now the properties, the physical properties, if I talk about them, physical properties. So dihydrogen is colorless, odorless, tasteless, combustible gas. It can undergo combustion. H2 plus half O2 will give you H2. तो देखिए इसमें कितनी एक इंग्लिश में इसे बड़ा अच्छा वर्ड बोलते हैं डाइकोटमी, कि जब आप हाइड्रोजन को बर्न कर रहे हो, व्हेन यू आर बर्निंग हाइड्रोजन मतलब जला रहे हो, तो आपको पानी मिल रहा है, वाटर, यू आर गेटिंग वाटर, एंड वाटर इज यूज्ड टू डाउस द फायर, ये आग को बुझाने का काम करता है। तो देखिए आग से बना और आग को ही बुझाने का काम करता है, कितनी इंटरेस्टिंग बात, राइट। चलिए, इट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, जो आपकी हाइड्रोजन गैस होती है पीरियोडिक टेबल का लाइटेस्ट एलिमेंट है, इसका मोलर मास 2 होगा और इससे कम किसी का नहीं होता, and it is lightest gas. The density with respect to air
अगर मैं एयर को 1 लूँ तो ये उसके रिस्पेक्ट में ध्यान से देखिए इवन 100th पार्ट भी नहीं है। 1 liter of the gas weighs only this, so it is the lightest gas. So these are physical properties. Critical temperature is very low. क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? ये वो टेम्परेचर होता है, अगर किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर मान लीजिए ये आपका आ गया 40 केल्विन सपोज, तो इसका मतलब है 40 केल्विन से ऊपर आप हाइड्रोजन को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कुछ भी कर लो, कितना भी हाई टेम्परेचर, कितना भी हाई प्रेशर अप्लाई कर लो। तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जिस पर आप एक गैस को लिक्विफाई कर सकते हो। अबव क्रिटिकल टेम्परेचर यू कैन नॉट लिक्विफाई ए गैस, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर यू कैन लिक्विफाई ए गैस, राइट। नेक्स्ट, इट्स मॉलिक्यूल इज डाइएटॉमिक। ये मॉलिक्यूल डाइएटॉमिक होता है, इंडिकेटेड बाय रेशियो ऑफ Cp/Cv दैट इज 1.5। तो इसे हम गामा कहते हैं, कोफिशिएंट, इसे एडियाबैटिक कोफिशिएंट भी कहा जाता है। स्पेसिफिक हीट्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, तो Cp का क्या फॉर्मूला होता है? गामा R ओवर गामा -1। Cv का क्या फॉर्मूला होता है? R। तो आइडियल गैस के लिए आप इसकी मदद से Cp और Cv निकाल सकते हो। It is absorbed by certain metals like Fe, Au, Pt and Pd. You might have heard in organic chemistry for hydrogenation you use Pd. Why? Pd और Pt। तो मैं आपको बताता हूँ कि अपनी वॉल्यूम से 800 गुना ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा लगभग ये अपने अंदर हाइड्रोजन के गैस के मॉलिक्यूल्स को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब। देखिए होता क्या है, हाइड्रोजन को नाउ डेज वी आर ट्राइंग, टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप की जा रही है कि हाइड्रोजन आप जानते हो कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई है, लेकिन दिक्कत क्या है, गाड़ियों में हम इसे क्यों यूज़ नहीं कर पाते? बिकॉज इट इज़ एक्सप्लोसिव। गाड़ी में यूज़ करी और कहीं गड़बड़ हो गई एंड देयर विल बी ब्लास्ट। तो इसकी स्टोरेज की भी दिक्कत है, क्योंकि गैस है, घर में गैस का सिलेंडर आता है, यू माइट हैव सीन कितना मोटा सिलेंडर वो होता है, राइट। सो हम ऐसे सोर्सेज ढूंढ रहे हैं, जैसे प्लेटिनम में पीडी, ये अपने अंदर ही वाटर को, सॉरी, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उनके अंदर चली जाती है अपनी वॉल्यूम, अगर ये 1 ml ली तो 800 ml हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेगी। उससे क्या होगा, ब्लास्ट का चांस खत्म हो जाएगा। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज पर वर्क किया जा रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एडजॉर्ब। तो ये पूछा जा सकता है, आजकल मोदी जी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल और इन सबको गडकरी जी बढ़ावा दे रहे हैं। तो इट इज एडजॉर्ब्ड और occluded by certain metals like these. Palladium powdered state can occlude nearly 1000 times of its own volume. देखिए, just imagine if I am taking 1 ml palladium, it can absorb 1000 ml hydrogen. तो अपनी वॉल्यूम से 1000 गुना ज़्यादा, जस्ट इमेजिन। चलिए, ट्रांसपोर्टेशन। तो देखिए, सिंस क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी लो, इसका मतलब इस टेम्परेचर से ऊपर, भाई रूम टेम्परेचर कितना होता है? 300 केल्विन। 300 केल्विन पे तो ये हमेशा गैस होगी, इस टेम्परेचर से ऊपर हमेशा गैस ही होगी, अभी समझाया था क्रिटिकल का क्या मीनिंग है। तो ये हमेशा गैस की फॉर्म में रहती है, तो इसे ट्रांसफर करने के लिए फिर आपको गैस के लिए तो आपको एयर टाइट वेसल चाहिए, जो कॉस्टली होता है। लिक्विड है तो कहीं भी ड्रम में भरा और पहुंचा दिया, है ना। लेकिन कोई चीज़ गैस है तो आपने देखा होगा, गैस के बड़े बड़े ट्रक होते हैं, वो बिल्कुल एयर टाइट होते हैं, उनसे ना गैस निकल सकती है ना जा सकती है। तो ये हो गई, इट कांट बी लिक्विफाइड इजीली, hence the gas has to be transported under the pressure in steel cylinders having almost negligible mass of gas. तो थोड़ी सी गैस को ट्रांसफर करने के लिए भी आप इमेजिन कीजिए कितनी कॉस्ट आती है। स्टील के भारी भारी वेसल लिए जाते हैं इन ईदर ऑफ द फॉलोइंग वेज। कैसे करते हैं? इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोलिथ। तो हम लोग इसे गैस की फॉर्म में ना रख के इसके ये कंपाउंड बना लेते हैं, हाइड्रोलिथ CH2, ये हाइड्राइड है। तो 1 पाउंड ऑफ हाइड्रोलिथ गिव्स इतने फीट क्यूब ऑफ हाइड्रोजन। तो बाद में पानी डाल के इससे बना लेंगे। अभी मैंने आपको रिएक्शन बताई थी, याद है? CH2 पानी डालो, आपको क्या देगा? तो मैं, अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जब वो गैस थी तो आपने बड़े बड़े कंटेनर में उस गैस को फिल किया और फिर उस कंटेनर को चला चला के लेके जा रहे हो। बड़ा देखा होगा, बड़े बड़े ट्रक वो चलाते रहते, पीछे बहुत लंबा एक कंटेनर लगा रहता है, बड़ा कॉस्टली होता है ये काम। तो गैस को ट्रांसपोर्ट करना, फिर कहीं लीक होगी तो बेचारा वो केरला से जम्मू कश्मीर जा रहा है और रास्ते में लीक होगी महाराष्ट्र में, खाली ट्रक कोई घुमा रहा है 2 दिन, वहां जाके पता पड़ी साहब लीकेज थी। तो ये प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए
इसे हाइड्रोलिथ की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है, तो ये एक सॉलिड है। बाद में इसमें पानी डालोगे तो जहाँ पहुँच जाएगा वहाँ से हाइड्रोजन तैयार कर लो, पानी तो डालना है। घर में भी तो पानी डाल के आप लोग ग्लूकोन डी तैयार करते हो, ठीक, इन फॉर्म ऑफ एनहाइड्रस NH3 in light aluminum containers which on cracking gives nitrogen and hydrogen mixture। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एनहाइड्रस NH3 ले सकते हो, लाइट एल्यूमिनियम कंटेनर्स विच ऑन क्रैकिंग, तो जब आप इसे ब्रेक करोगे तो यू विल गेट N2+H2। नेक्स्ट पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, राइट। द हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज हाईएस्ट फॉर सिंगल बॉन्ड। आपको अगर याद हो तो हाइड्रोजन और क्लोरीन की अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, तो जस्ट रिमेंबर इट, इसकी 436 थी, और इवन अगर मैं क्लोरीन भी लेता हूं तो इसकी 228 है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसे डिसोसिएट करना बहुत ही डिफिकल्ट है, राइट। तो द इट्स रिलेटिवली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू हाई हाइड्रोजन गैस। Thus the atomic hydrogen is produced at very high temperature। तो अगर आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना है तो बहुत हाई टेम्परेचर रखना होगा, तो या फिर इलेक्ट्रिक आर्क वगैरह अप्लाई करनी पड़ेगी। Since atomic hydrogen orbitals is incomplete with one electronic configuration, it does not combine with almost all the elements। तो इसका ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है और ये इसे पूरा करना चाहता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो किसी के साथ भी कंबाइन कर जाता है। आपने देखा होगा ये मेटल के साथ भी करता है, नॉन मेटल के साथ भी करता है, राइट। अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। द केमिस्ट्री ऑफ डाई हाइड्रोजन कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए रिएक्शन हेलोजेंस के साथ इसकी रिएक्शन, तो अगर मैंने हेलोजन लिया तो मान लीजिए H2F2 गैस ली, तो इट विल गिव मी 2HF। H2Cl2 गैस ली, इट विल गिव मी 2HC। हेलोजेंस के साथ इट विल गिव यू HX। देन while the reaction with the fluorine occur even in the dark, तो ये तो आपके अंधेरे में भी हो जाएगी फ्लोरीन के साथ, बट व्हेन यू टेक आयोडीन ये रिएक्शन बहुत स्लो होगी। स्लो होने की वजह से, फ्लोरीन तो बहुत एक्टिव होता है, इसकी एक्टिविटी बहुत हाई होती है, इसकी कम होती है, तो यू हैव टू यूज द कैटलिस्ट। नेक्स्ट, रिएक्शन विद डाई ऑक्सीजन। तो आप लोग जानते हो डाई ऑक्सीजन के साथ अगर आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो यू विल बी गेटिंग वाटर। द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, तो इसके दौरान एनर्जी रिलीज होगी। कितनी रिलीज होगी जरा ये भी देख लीजिए, -286 almost। So when H2 and O2, this particular reaction takes place। Next point, reaction with डाइनाइट्रोजन। तो जब डाइनाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या होगा भाई, N2 plus हाइड्रोजन will give you NH3। So it is giving you NH3, but ये जो रिएक्शन होती है it takes place at a very high temperature, 673 Kelvin or 200 ATM, और iron is used as catalyst, right। And if you want to use molybdenum, that would be used as promoter। तो ये हो गई नाइट्रोजन के साथ। ये सब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, किसके साथ रिएक्शन करके क्या देती है, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको तरीका भी बताया हुआ है, हाउ विल यू फाइंड आउट एंडो और एक्सो। अगर आप इसे रिवर्स करके लिख देते हैं 2NH3 गैस, तो इट विल गिव यू N2 गैस एंड 3H2 गैस। So now dissociation is taking place. So to dissociate it, you have to provide energy, and all dissociation reactions are endothermic। तो ये एंडो है, इट इज रिवर्स ऑफ दिस। तो मैंने उसे उल्टा करके ही तो लिखा है, अमोनिया उधर हो गया और ये इधर आ गया, तो वो एक्सोथर्मिक होगी। तो प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इज एक्सोथर्मिक, वेरी इंपॉर्टेंट, जेई में कई बार पूछी गई है केमिकल इक्विलिब्रियम में। दिस इज द मेथड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस पूछ लिया जाता है, हेबर प्रोसेस कहाँ पर यूज होती है, टू प्रोड्यूस अमोनिया, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहाँ पर यूज होती है, टू प्रोड्यूस H2SO4। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। हेबर प्रोसेस, metals with many metals it combine at high temperature to yield the corresponding hydride। बहुत इंपॉर्टेंट, एक हाइड्राइड तो मैंने अभी बताया था CH2, इसकी फॉर्म में उसे बना के इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किया जाता है NaH। तो हाइड्राइड बनाने के भी ये काम आती है भाई। तो H2 प्लस मेटल गिव यू MH। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ H2 गैस प्लस 2Na will give you 2NaH।
यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होनी चाहिए, ये +1 होती है, ये -1 होती है। सिमिलरली H2 गैस प्लस Ca विल गिव यू CH2, ये प्लस होती है माइनस, तो हाइड्राइड्स में नॉर्मली ये -1 है, राइट, बिकॉज मेटल्स के ऊपर हमेशा +1 होगा, मेटल्स विल ऑलवेज हैव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। गॉट इट? Reaction with metal ion and the metal oxide. So it reduces some metal ions in the aqueous solution and oxides of metal, less active metal than iron, into the corresponding metals. So H2 and Pd2 plus, तो ये less active है, तो ये इसे Pd में कन्वर्ट कर देती है। तो ऑक्साइड्स को भी अगर आप हाइड्रोजन के साथ करेंगे तो इट विल गिव यू प्योर मेटल्स, राइट। तो यहाँ मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूँ, H2 गैस प्लस Au3 plus, so you can get Au, got it? H2 gas plus, so it reduces some metal ion in aqueous solution and oxide of metal, less reactive metals. So here if I take Cu2O, it will give you Cu solid plus H2O. तो ये सारे काम कर सकती है भाई। अगर आप लोग यहाँ लेते हैं Ag2O, it will give you Ag solid plus H2O। बट ये रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं होती, नहीं तो आपको प्योर कॉपर और ये मिल जाते हैं। दैट्स डिफिकल्ट बट इट कैन बी कैरिड आउट। ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ भी ये रिएक्ट करता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके क्या देता है? हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग निकल एज कैटलिस्ट, एडिटेबल गिव्स एडिबल फैट्स एंड वनस्पति घी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है बहुत बारी, व्हेन वी प्रिपेयर वनस्पति घी तो कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? तो दैट इज निकल, वनस्पति घी, टू प्रोड्यूस वनस्पति घी। Hydroformylation of olefin yield aldehyde which further undergoes reduction to give alcohol. Just look at it. These are aldehydes. These are giving you alcohol, right? So with the CO. So comment on the reactions of hydrogen with chlorine. So I have taught you this. Sodium. So it will form HCl, with sodium it will form NaH, with CuO. I just told you CuO plus H2 will give you Cu plus H2O, right? Copper to copper in zero oxidation state and itself get oxidized to H2O. Why? क्योंकि कॉपर आपका लेस एक्टिव मेटल था। क्यों कर देता है ये? क्योंकि कॉपर आपका लेस एक्टिव मेटल था। याद है ये पॉइंट मैंने कहाँ बताया था? ये रहा, Cu2O, CuO plus H2O will give you Cu solid plus H2O। तो ये कॉपर वगैरह को रिड्यूस कर देती है, कॉपर ऑक्साइड और इन सबको। गॉट इट? चलिए, कमेंट ऑन द रिएक्शन। सो दिस इज डन नाउ। द लार्जेस्ट, what are the uses of hydrogen? The largest single use of dihydrogen, ये use कहाँ पर होती है? In the synthesis of ammonia, which is used in the manufacture of nitric acid and nitrogen fertilizer। अमोनिया देखिए फर्टिलाइजर्स की तरह यूज होता है, और वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया इज ए फार्मर कंट्री, फार्मर्स कंट्री। हम लोग कृषि प्रधान देश हैं, तो हमें बहुत यूरिया की जरूरत होती है। यूरिया में अमोनिया की जरूरत होती है। तो देखिए अमोनिया प्रोड्यूस कैसे होगा? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन। तो मुझे हाइड्रोजन बनाना पड़ेगा, वी हैव टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। तो ये वहां पर यूज होता है। डाईहाइड्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति फैट, वनस्पति घी बनाने के हमारे घरों में यूज होता है। एंड हाइड्रोजनेशन ऑफ पॉलीसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल लाइक सोयाबीन, कॉटन, सीड्स एटसेट्रा। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बल्क ऑर्गेनिक केमिकल, पर्टिकुलरली मीथेनॉल। गॉट इट? इट इज़ वाइडली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटल हाइड्राइड्स। मैंने अभी अभी बताया ये क्यों यूज होता है। मेटल हाइड्राइड ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है। इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। ये एसिड है, वाटर में डिजोल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग वाटर। हाईली यूजफुल केमिकल। पूरी केमिस्ट्री में HCl 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 करते रहते हैं हम लोग। इन मेटलर्जिकल प्रोसेस इट इज़ यूज्ड टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड्स। तो हैवी मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर देता है, मेटल्स में कन्वर्ट कर देता है। Atomic hydrogen and oxyhydrogen torches used for cutting and welding purpose.
इट इज़ यूज्ड एज ए रॉकेट फ्यूल इन द स्पेस रिसर्च। तो देखो ये सब चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी। रॉकेट फ्यूल, मैंने आपको बोला था इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो हम हाइड्रोजन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ एक्सप्लोसिव, तो बहुत हाई टेक्नोलॉजी चाहिए। कार की कॉस्ट ही 1 करोड़ हो जाएगी, तो कैसे खरीदेंगे? समझ आया? तो डाई हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द फ्यूल सेल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। इन सभी पॉइंट्स को लिख लो। ये सारे पॉइंट आपको एक जगह नहीं मिलेंगे, और एनसीईआरटी पढ़ो, कुछ पॉइंट एनसीईआरटी में मिलेंगे, कुछ मैंने ऐड किए। तो बिल्कुल यही एडवांस के लेवल का कंटेंट है, तो आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर इट एंड लाइक इट एंड click on this bell icon so that you can get latest notification of my lectures. So join this channel and ask your friends to join it. So आज के लिए फिर इतना ही बहुत है। बाय बाय, टेक केयर।